ये हाजरियाँ गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद उपरंत बाणी की विचार नाल जुड़ना करांगे। गज के आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्री राग महला तीजा। सुन सुन काम गहेलिए क्या चलै वहाँ लुड़ाए। अपना फिर ना पछानई क्या मोह दे सह जाए। जिन्नी सखी कंत पछाणिया हौं तिन कै लागों पाए। तिन ही जैसी थी रहा सतसंगत मेल मिलाए। मुंधे कूड़ मुठी कुड़ियार फिर प्रभ साचा सोहना पाइए गुर विचार। फिर प्रभ साचा सोहना पाइए गुर विचार। रहा वाहिगुरु ये पवित्र बचन राग श्री राग श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंक 37 उपर सुभाएमान। निमाणिया दे मान निताणिया दे तान सतगुरु तेजो नंदन धन धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी दे उचारण किए हुए जो आप जी ने सरवण किते। इन्हां बचनां राही धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सानू की उपदेश बख्शदे हन। श्री राग महला तीजा। सुन सुन काम गहेलिए क्या चलै बाहां लुड़ाए। बाहां लुड़ाए चलना मतलब बेफिक्र होके तुरना, कोई फिक्र ना होनी, कोई चिंता ना होनी। दो जने आ, एक तो वो जिन्हें अपना काम नवेड़ लिया वो भी बेफिक्र हो गया। एक ओह जिसनों परवाह ही कोई नहीं, काम होवे चाहे ना होवे आपां नूं की। हुण इत्थे धन धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी उन्हां मनुखां नूं ये गल कहिंदे आ जिहड़े गुरु नाल नहीं जुड़दे पर बेफिक्र होके दुनिया दे विच विचर रहे न, ऐशो इशरत विच फसे होए न, जिन्हां दे रब याद नहीं, मौत याद नहीं। उन्हां जीवां नूं उन्हां मनुखां नूं एक जीव इस्त्री दा रूप दे के कहंदे हन जिवें कोई इस्त्री काम वासना विच फसी होवे और उसनूं अपने घर दी परवाह ना होवे, पति दी परवाह ना होवे, अपनी मस्ती विच मस्त होवे, तो फिर वो अपने पति नूं क्या मूँह दिखावेगी। इसे तरह ही ये जीव इस्त्री मातलोक विच आके मालक नूं याद नहीं रखती। जिवें कोई इस्त्री पेके जाके बैठ जावे ते सहुरे घर दा ख्याल ही भुला देवे और अपने मालक नूं ही भुला देवे ते मात लोक रूपी पेकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ करे,
ਸੰਸਾਰੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖ ਚੱਕੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਸੋਨੂੰ, ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕਾਮ ਗਹੇਲੀਏ, ਉਹ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਕਿਆ ਚੱਲੈ ਬਾਹਾਂ ਲੁੜਾਏ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਬੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਚੱਲਦੀ ਐ। ਮਾਲਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਪਿਰਨਾ ਪਛਾਣੀ, ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇਸੈ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵੇਂਗੀ। ਭਲੀਏ ਮਾਨਸੇ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਜਿਨੇ ਸਕੀ ਕੰਤ ਪਛਾਣਿਆ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ। ਹਉ ਤਿਨ ਕਹਿ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ, ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਭਾਵ ਸਹੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੀਏ। ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਕੰਤ ਪਛਾਣਿਆ, ਹਉ ਤਿਨ ਕਹਿ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ। ਤਿਨ ਹੀ ਜੈਸੀ ਥੀ ਰਹਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬੇਫਿਕਰੀ ਛੱਡ, ਕੁਝ ਫਿਕਰ ਕਰ ਉਸ ਮੌਤ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕਾਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਕਰੀਏ, ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਪਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਨੂੰ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਯਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ, 2.5 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲਿਆ ਕਿਆ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਬਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਕਿਆ ਤੈ ਖੱਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ, ਤੈਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗ ਜੂਗਾ।
कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल के सवास लैके दुनिया में आया तो 24,000 सवास रोज़ का खर्च हो जाता है। तो पातशाह जी कहते दस खां इन्हां सवासां दे बदले तू की व्यापार किया। इन्ने कीमती सवास जिहड़े दोबारा मिलते ही नहीं, किसी भाव ही नहीं मिलते। सारी जिंदगी ला के बेअंत माया इकट्ठी कर लवे, कोठे भर लवे, तो मौत वेले डॉक्टर नूं कह दिओ मेरी सारी संपत्ति लै ला, मैनूं 2-4 सवास होर दे दे। डॉक्टर हथ बन खड़ूगा, नहीं ये मेरे एक हथ विच नहीं, ये परमेश्वर के हथ विच है। वो देवे तो देवे, जे उन्हें खत्म करते तो फिर कोई नहीं देण जोगा। कबीर कहता हूँ कह जात हूँ, कहता हूँ ढोल बजाए, 3 लोक का मोल है सवासा बिरथा जाए। ये 3 लोकां दा मुल जिहड़ा परमेश्वर दा बख्शिया होया खजाना सवासां दी पूंजी, एक सवास का मुल 3 लोक भी थोड़ा है, क्योंकि 3 लोक दे के भी मिलता नहीं ना। जिहड़ी चीज़ किसे भाव ना मिले फिर ओहदा कोई भाव नहीं हुंदा गा। इस करके पातशाह कहने भलिया हे जीव आत्मा जीव इस्त्री, आ उन्हां दी संगत करिए, छड्ड इन्हां विषय विकारां चों बाहर निकल। सुन सुन काम गहेलीए गया चलै बाहां लुड़ाए। तू संसार दे धंधियां विच फसिया होया, काम बाशना विच फसिया होया, बड़ियां बाहां मार मार तुरदा है। अपना पिर ना पछाणी, अपने मालक नूं याद नहीं करदा, तेरे मौत भी याद नहीं। क्या मोह देसां जाए, फिर कल नूं मालक दे कोल जद जाना पिया फिर की मूँह दिखावेंगा। जिन्नी सखी कंत पछाणिया है सहेली, जिन्हां जीव इस्त्रियां ने मालक नूं जान लिया, जिहड़ियां मालक नाल जुड़ गईयां, प्रतख रूप दे विच 36 परमेश्वर दे प्यारे गुरबाणी विच विराजमान हन, जिन्हां ने मालक नूं पछाणिया। आ जा इन्हां दे पैरी पै जा। जिन्नी सखी कंत पछाणिया हो, तिनकै लागों पाए, तिन ही जैसी थी रहा। आ उन्हां दी संगत करके उन्हां वर्गे हो जाइए। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। सत संगत मेल मिलाए, आ बेनती करिए मालक अगे, मालका सानू तेरी प्यारियां दी संगत बख्श दे। सतसंगत मेल मिलाए मुंदे, मुंदे भाव भुली हुई। हे भुली हुई जीव इस्त्री, कूड़ मुट्ठी कुड़ियार तू ठगी जा रही आ। तैनू झूठ दे नाल ठगिया जा रहा, तेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। जे तू इस ठगी तो बचना है तो आ गुरु नूं पुछीए कि सानू साडा मालक किवें मिल सकदा है। फिर प्रभ साचा सोहना पाईए गुर विचार। गुरु दे कोल चलीए, गुरु नूं पुछीए कि महाराज वो परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा जो है, असी उहनूं किवें पा सकदे हां। सही प्यारिया मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चिते आवे। धन धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी बख्शिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने दे जीवन दे विच भी ये घटना घटी है। 65 साल वो भी जिंदगी दे गंगा की यात्रा च तुरे फिरते रहे। वो तो एक दिन भाग चंगे सी, एक ब्रह्मचारी उन्होंने चोट ला गया। उन्हों का साथी गंगा का यात्री एक चोट ला गया कि अमरदास तेरा गुरु कौन है। जदों ये पूछया तो जिवें असी कह दिंदे आ गुरु की की लोड़, आप तो रोज़ गुरुद्वारे जाने आ, चंगी गल है। गुरुद्वारे आके समझ आई भी गुरु वाले भी बनना चाहिए। गुरु घर जाना, अपने धार्मिक स्थान पर जाना जरूरी है, चंगी गल है, क्योंकि उत्थों ही सिक्ख्या मिलती है।
ਬਈ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਖਰਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੁੰਧੇ ਕੂੜ ਮੁੱਠੀ ਕੁੜਿਆਰ। ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਚੱਚਾ ਰਚਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਰੀ। ਚਿੱਤਰ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਚੱਚਾ ਰਚਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਤਾਂ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਚੇਤੋ ਚਿਤਕਾਰੀ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੈ ਜਾਨਵਰ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੈ ਪੰਛੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਇਸਤਰੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਚੱਚਾ ਰਚਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਤਾਂ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਚੇਤੋ ਚਿਤਕਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੱਚਾ ਰਚਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਤਾਂ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਚੇਤੋ ਚਿਤਕਾਰੀ। ਚਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਅਨੋਖੇ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਅਵਚੇਰਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੋਹਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਦੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ? ਇਹ ਹੈ ਅਵਚੇਰਾ। ਚਿੱਤਰ ਛਾੜ ਚਿੱਤ ਰਾਖ ਚਿਤੇਰਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚਤੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਆ? ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ? ਬੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕਾਮ ਗਹੇਲੀਏ, ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਬਾਹ ਲੁੜਾਏ। ਬੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੁਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਹੜਾ? ਪਰ ਤੈਥੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਆਓ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸੜ ਵੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੀ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ, ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਭਈ। ਚਿੰਤਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾਉਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮਰਾਜ ਲੋਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮਨ ਜਲਿਆ, ਮਨ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਰਸ ਉੱਪਰ। ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਭਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ, ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਊਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ।
क्योंकि जे साडा मालक मिठ बोलड़ा है तो असी उहदे सिख हाँ, तो फिर साडी बोलबाणी बदलनी चाहिए आ। जे साडी बोलबाणी नहीं बदलनी तो फिर असी हजे कर्मकांड ही करते हैं, क्योंकि साडा मालक तो एडा सोहना तो एडा चंगा मिठ बोलड़ा जी, हर सज्जन स्वामी मोरा। हाँ समल थकी जी वो कदे ना बोला कौड़ा, तो असी कौड़ा बोलते हैं। असी उहदियां प्यारियां उहदियां संगतां नूं झिड़कदे हाँ, फिर इहदा मतलब असी हजे उहदे नाल जुड़े नहीं। इस करके साडा मालक बड़ा सोहना है, उहदे नाल जुड़िए, उहदे वर्गे बणीए। ते नहीं जैसी थी रहा, उहदे प्यारियां दी संगत करके माड़ा मोटा असर लईए अपने दिमाग उत्ते भी साडा मालक गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह किन्ना प्यार करने वाला, ते असी संसार नूं भज भज पैने आ, कौड़ा बोलते हैं, फिर किवें साडा मालक सानू प्यार करेगा। खालक दुख है जे खालक की, तिस पर कोपै खालक। जे मालक दी जनता नूं सृष्टि नूं संगत नूं दुख दिता जावे तो उस ते खालक परमेश्वर बड़ा ही गुस्से हुंदा है। इस करके मूर्खे मुंधे कूड़ मुठी कुड़ियार, क्या तू झूठ दे विच फसी हुई ठगी जा रही है। तेरा मालक बड़ा सोहना है, क्या तू थां थां भटकदी फिरदी है। सुन सुन काम गहेलिए, क्या चलने वहां लुड़ाए, बड़ियां बाहां मार मार तुरदी है। अपने आप नूं बड़ी सोहनी समझदी है, हे जीव इस्तरी। ये दिमाग चो हंकार कढ़ के निमरता नाल चल। फिर प्रभ साचा सोहना, तेरा मालक बड़ा सोहना है। पाईए गुर विचार, आओ गुरु नूं पुछिए किवें मिलूगा रहाओ। मन मुख कंत ना पछानई, तिन क्यों रैन बिहाए। बड़ियां सुंदर उदाहरणां पातशाह ने बाणी च दित्तियां। जिहड़ी मनमुख इस्त्री अपने मालक नूं समझदी नहीं, उहदा सुभाਅ नहीं समझदी, वो की चाहुंदा ये नहीं समझदी, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ रूपी रात ਇੰਨੀ दुखी हो जू जिवें कोई बच्ची अपने पति तो विछड़ के पेके बैठी दुखी होई जावे। फिर की कहंदी आ, असुन माहे सुहंदियां, असुन प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिया हर जाए। आ सुन तैनू मैं दसां, जे तू अपने मालक नूं मिलना चाहुंदी है तो किवें मिल सकदी है। आ पढ़िया सी कल परसों आपां संगरांद ते। असम प्रेम उमाहड़ा, जे तेरे अंदर मिलन लई प्रेम दे उछाले उठदे आ ना, तो आ तैनू मैं मिलावां। महाराज जी तां करदा मिलन नूं, करदा है हाँ। असुन प्रेमी उमाहड़ा, क्यों मिलिया हर जाए। मन तन प्यास दर्शन घनी, कोई आन मिलावे। कौन? माए। लड़की नूं तां मां ही सैटिस्फाई करूगी। ते साडी मां है साडा गुरु, को सतनाम सी। सानू साडा गुरु मिला सकदा है, जिवें एक बच्ची नूं समझा बुझा के दुबारा ओदी मां ही सहुरे घर भेजदी आ, को सतनाम श्री। क्योंकि मां ते धी दा पर्दा एक हुंदा है। धी अपनी मां कोले ही दसदी है, बेबे हुण मैं की करा। मन तन प्यास दर्शन घनी, कोई आन मिलावे माए। ते गुरु मां नूं पुछया ते गुरु मां कहंदा, संत सहाई प्रेम के हौ तिनकै लागों पाए। आओ उहदे प्यारियां दे कोल चलदे आ, वो विचोले बन के मिला दिंदे आ कई वारी। इस करके मुंदे इत्थे पातशाह ने कहा, माया दे विषे विकारां दे काम वासना दे नशे विच मस्त है जीव इस्त्री। मुंद हुंदी है मस्त, जिवें कोई शराबी हुंदा ते बंदा विषे विकारां काम वासना विच मस्त बाहां मार मार तुरदा, मेरे वर्गा सोहना कोई नहीं हैगा। पातशाह कहंदे तैथों सोहना तेरा मालक है।
फिर प्रभ साचा सोहना पाईया गुर विचार आ गुरु नूं पुछिए रहाओ। जिन्हां ने गुरु अमरदास जी की गल मान लई उन्हां दा भला हो जू, जिहड़े नहीं मनदे उन्हां दी अगली पंक्ति आ मन मुख कंत ना पछाणई। जिहड़ियां मन मर्जी करदियां नहीं मां की गल सुनदियां, नहीं गुरु की गल सुनदियां, नहीं अपने मालक के सुभाਅ नूं समझदियां, नहीं मालक नूं पछाणदियां। कई कुड़ियां हंकारी हो जांदियां ना, पेके अमीर होण गां कोई थोड़ा जिहा डाउन बंदा मिल जे पति ते फिर की कहदियां लै सारा समान तां मेरे प्यो ने तां तुहाडे घरे की सी नंगा ने। फिर उत्थे कुड़ी कदे नहीं वसदी। को सतनाम श्री। जे सब कुछ मालक दा मन के चलीए फिर ही वसिया जा सकदा। इसे तरह ही मनमुख जिहड़ा जीव है, जिहड़ी मनमुख जीव इस्त्री है, वो अपने मालक नूं पछाण नहीं सकदी। मनमुख कंत ना पछाणी तिन क्यों रैन बिहाए। उन्हां दी जिंदगी रूपी रात किवें सौखी लंघूगी। जिहड़ियां थां थां भटकदियां उन्हां दे वास्ते लिखिआ भादोए भरम भुलाणियां दूजा लगा हेत लख शिंगार बनाया कारज नाही केत। जिन्हां ने धार्मिक चिन्ह तां पाए न बाहरी तौर ते, पर अंदरों मालक नूं समझिया नहीं कि मालक चाहुंदा की है। मालक तां प्रेम चाहुंदा साडा। साच कहो सुन लिहो सभै जिन प्रेम कीओ तिन ही प्रभ पायो। ते असीं प्रेम कित्थे करदे आ? तां इस करके असीं आकड़ विच ही अपने आप नूं बाहले चंगे समझने आ। प्रीतम जी कहंदे मनमो कंत ना पछाणी तिन क्यों रैन बिहाए। ते अखीर दुनिया दे विचों किवें तुर जांदियां? गर्भ अट्टियां। अट्टियां किवें? जिवें गर्दा चढ़ जावे किसी वस्तु ते, वो जीव इस्त्रियां दे उत्ते हंकार दा गर्दा चढ़िया हुंदा है। उन्हां नूं दिसदा ही नहीं चज नाल, ना उन्हां नूं मालक दिसदा है, ना मालक दी संगत दिसदी है, ना मालक दी जनता दिसदी है उन्हां लोकां नूं। क्योंकि उन्हां दे अखां ते हंकार दी गर्द चढ़ी हुंदी है। उन्हां दे कन्नां ते हंकार दा गर्दा पिया हुंदा है। कंन बंद हो जांदे आ हंकार दी मैल नाल। उन्हां दी जीव दे उत्ते भी हंकार चढ़िया हुंदा है, माड़ा बोलदे है। प्रीतम जी कहंदे इहो जिहियां जीव इस्त्रियां गर्भ अट्टियां तृष्णा जले। अपने हंकार विच आपे सड़दियां रहिंदियां। कहो सतनाम श्री। जे कोई कहना ईर्खा करदा है ना, जिहदे नाल ईर्खा करदा शायद उहदे तक हजे वो अग ना पहुंचे। जिहड़ा करदा है वो तां तुरत ही सड़दा है। कहो सतनाम श्री। जग ते जलंदा रख लै अपनी किरपा धार। बस यही 5 तरह की अग सानू लगी हुई है। 5 अगन तित लाग रही। कोयले पा पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई। चिंता सानू बार बार अग विच मचाउंदी है। प्रीतम जी कहंदे इहो जिहियां हंकारी जीव इस्त्रियां, ये गल इस्त्री दी नहीं मनुखां दी विच ही आ। क्योंकि आपां सारे आत्मा करके इस्त्रियां अपनी सारियां दी गल है। ये किते जीव इस्त्री कहण तो समझी जाओ कि कली बीबियां वास्ते इस्त्रियां वास्ते गल है। नहीं, इस जग में पुरख एक है और सगली नार सबाई साडे सारियां वास्ते है। प्रीतम जी कहंदे ਜਿਹੜੀਆਂ जीव इस्त्रियां ਜਿਹੜੇ मनुख ਜਿਹੜੀਆਂ इस्त्रियां हंकार विच ही भरियां होईयां, अट्टियां भरियां होईयां। जिवें किसी चीज़ ते गर्दा चढ़ जे आपां कहना तां सारा ही अट्टिया गया मिट्टी नाल। कहो सतनाम। गर्भ अट्टियां तृष्णा जले दुख पावै दूजे भाए। मालक नूं छड्ड के ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ भटकदियां वो दुखी हुंदियां। फिर महाराज सुखी किवें होणगियां? सुखी होणगियां शब्द रतियां सुहागणी। मालक दी गल मन के, मालक दे शब्द नूं सुन के, मालक दे वचन नूं मन के। बाबा फरीद जी दी कहानी आपां थोड़ी सरवण करिए।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ 36 ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। 12-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਗਏ, 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜੇ, ਕੇਸ ਉਲਝ ਗਏ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਦ ਕੇਸ ਵਾਹੇ ਘਰੇ ਆਏ ਦੇ ਫਿਰ ਪੀੜ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦਾ ਦੁਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਤੋੜਦਾ ਸੂਤ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਜਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚੀਂ ਚੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰ ਜਾਓ ਪਰੇ। ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾੜ ਦਾੜ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਮਰੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਮਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉੱਡ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਡ ਜੋ ਚਿੜੀਓ। ਫਿਰ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਏ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਲੈ ਵੀ ਫਰੀਦਾ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਚੱਲ ਘਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਜਦ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਢੋ ਢੋਆਇਆ। ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ ਤੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਡੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਡੋਲੂ ਭਰਦੀ ਆ, ਡੋਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਡੋਲੂ ਭਰਦੀ ਆ, ਡੋਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਆਸ ਚਮਕਿਆ ਹੀ, ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਓ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਡੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਡੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਡੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ ਡੋਲੀ ਵੀ ਜਾਨੀ ਆ, ਘੁੱਟ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਇਹ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਮਰ ਜਾਓ ਕਦੇ ਜਿਉਂ ਪੋ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਤਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਲੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ 9 ਕੋਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਹੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਠੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਟਾ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਜੇ ਜਗਾਇਆ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮੰਗੂਗਾ। ਚਲੋ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਖੜੀ ਰਹੀ। ਘੰਟੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਖੜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਆ। ਨਦਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੇ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਆ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਓਨਾ ਚਿਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ
हुक्म मन्निया पाई है। फिर बाबे फरीद ने हुक्म मन के गुरु की सेवा शुरू की। तो गुरु कहन लग्या फरीद यार सियाल का मौका पानी गर्म करके इशनान कराया कर। कहन लगे जी ठीक आ। तो हुण पानी गर्म करने वास्ते रोजाना पहला उठ के अग मचाउंदे आ, पानी गर्म करके इशनान कराउंदे आ। एक दिन ऐसा झक्खड़ हनेरी आया रात नूं, चुल्हे वाली अग बुझ गई। उदों डब्बियां नहीं सी हुंदियां, अग नप्पी जाती सी, पाथी थले धुखी जाती, तड़के फिर भखा लेंदे उत्थों। अग बुझ गई सारी। तो फिर अग लैन चले आ, किसी गवांढी के घरों मंग लियाई दी जी, अपने घरों बुझे। कहो सतनाम श्री। मंगण चले आ। तो अद्धी रात का समय, हुण तड़के 2 बजे तक जां तां नाम जपण वाले उठते आ, जां भिखारी जागते आ। कहो सतनाम श्री। बाबा फरीद तुरिया जा रहा, किसी का घर खुला होवे, किसी के घरे दीवा जगदा होवे, ते एक थां दीवा जगदा दिसिया भी उत्थे कोई ना कोई जागदा होऊगा। जिस बारी चो लाइट दिसी सी उस बारी कोल पहुंच गया। तो अगे एक स्त्री बैठी आ। कहन लग्या बीबी थोड़ी जी अग चाहिदी आ। हुण ओह गा बेसवा सी, उहने मजाक कीता, कहने बाबा इत्थे अग दे पैसे लगदे आ। कहो सतनाम श्री। बाबा फरीद कहना पैसे तो मेरे को है नहीं बेटा। कहनी बाबा तेरिया अखा च आने है, आना दे दे, आना लगूगा। अच्छा हाँ सच ले आना तो हैगा। उंगल मारी, अख का आना कढ़ के बखा मारिया, पर एक कहना चाका लै। वो कहनी बाबा मैं तो मजाक करती सी, आ की करता तू? कहना हुण तां कढ़ता, चक लै। अख ते कहंदे पट्टी बन ली, वापस आ गया। उस तरह दुख की अख नाल दर्द होंदे नाल उहने अग मचाई। अग मचा के गुरु का इशनान कराया। इशनान करन तो बाद गुरु ने इहदे वल जा ध्यान मारिया ते कहन लग्या फरीद अख क्यों बन्नी आ? ये महाराज दुख नहीं आई आ, बहाना मारिया, हंकार नहीं किया भी मैं सोडे वास्ते अग लैके आया तो उत्थे आना दे के आया आपदा। कहो सतनाम श्री। कहने बाबा जी यह दुख नहीं आई है, आई हुई आ। बाबा फरीद कहते आई हुई आ। इनू भी कहते दुख नहीं आई, नू कहते आई हुई आ। कहते आई हुई आ फिर क्यों बनी आ? खोल दे, हुण तां आ गई आ। कहो सतनाम श्री। जद पट्टी खोली थले अख सबूत, और अख नू देख के उहदा गुरु कहन लग्या फरीद आ तां गई आ, पर आपां रब दी बराबरी नहीं कर सकते, ऐस तो थोड़ी छोटी आई आ। कहो सतनाम श्री। जा तेरी भगती पूरी हो गई, अज तो बाद जेड़े तेरे चेले होया करनगे उन्हां दी एक अख आटोमैटिकली छोटी होया करेगी। कहो सतनाम श्री। तो इस करके गुरमुखा ने उस मालक नू पछाण लिया। शब्द रत्तियां सुहागणी तिन विचों हौमै जाए। ਜਿਹੜੀਆਂ मालक दे शब्द ते चल पईयां तुर पईयां, उन्हां दा हंकार दूर हो गया। सदा पिर रावै अपना तिन सुख है सुख विहाए। वो हमेशा अपने मालक नू याद करदियां और अपना जीवन आनंदमई बतीत करदियां ते मनमुखियां दियां रातां रोंदियां दियां टपदियां। उन्हां दी जिंदगी रोंदियां दी लंघदी आ। मनमुख घर बट्टियां तृष्णा जले, दुख पावै दूजे भाए। गुरमुखां दी गल है। शब्द रत्तियां सुहागणी तिन विचों हौमै जाए। सदा पिर रावे अपना तिना सुख है सुख विहाए। वो मालक नू याद करदियां ते जीवन सुखमई बतीत करदियां। ज्ञान बिहूणी पिर मुत्तियां। अज्ञानता विच फसियां होइयां, ज्ञान तो खाली जिहड़ियां मालक ने छड्डियां होइयां। फिर मुत्तियां मालक तो टुटियां होइयां, मालक दियां बेदखल कीतियां होइयां। जिवें हर राय साहब जी ने राम राय नू बेदखल कर दिता। जिवें कोई पुत्र गल ना मने ते प्यो बेदखल कर दिंदा। जिवें कोई इस्त्री भी सही ना चले ते पति भी छड्ड दिंदा। कहो सतनाम श्री। ते साडी भी उही हालत आ। सड़कों के जेडे पशु बेचारे तड़फते फिरते हैं, ये मालक दे घरों कढ़े हुए न। कहो सतनाम श्री।
इन्हां ने भी किसी वेले मनुखा जीवन च मालक नूं याद नहीं किया होना। आ गाइयां जिन्हां घाह फूस खाण नूं चाहीदा लिफाफे खांदियां फिरदियां, ये मालक दियां कड्डियां होईयां ही आ। ते जे असी अज मनुखा जीवन ना संभालिया तो कल नूं साडा भी यही हाल होना। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बिरख जोयो। बिरख कहंदे आ बलदां नूं, कई जन्म बलद बना के गड्ढे कोहलू जोड़े जांदे आ। मिल जगदीश आ मालक नूं मिलिए, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाले देश नरिया, सुन सुन काम गहेलिए। ओए काम बाशना विच फसी जीव इस्तरी, क्या चलने बाहां लुड़ाए, बरियां बाहां मार मार तुरदा बेफिक्र है। ना रब दा फिक्र ना मौत दा फिक्र तैनूं, ना रब दी याद ना मालक दी याद, ना मौत दा डर ना मालक दा डर। तेरा बनूगा की? ज्ञान विहूणी फिर मुतियां, पिरम ना पाया जाए मालक नहीं मिलना। पूरे भाग सतगुर मिले। आ वड्डे भाग आ तुहाडे जिहड़े गुरु चरनां च आके बैठदे हो, ये वड्डे भागां दी निशानी है। पूरे भाग सतगुर मिले फिर पाया सच समाए, क्योंकि गुरु ही सानू मालक नाल मिलाउंदा विचोला बन के। को सतनाम श्री। असल दे विच जिहड़ा इत्थे गुरु है यही उत्थे रब है। बस इत्थे गुरु दे लड़ लगो, शरीर छड्डोगे तो मालक दे चरनां विच ही जाओगे। मेरे प्रीतम जी कहंदे पूरे भाग सतगुर मिले फिर पाया सच समाए, से सहियां सुहागनी जिनको नदर करे। ओ सहेलियां, ओ जीव इस्त्रियां सुहागना बन जांदियां, मालक उन्हां नूं आपदियां बना के रख लैंदा है। सुन यार हमारे साजन करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खुजंतिया। तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे, एक भोरी दर्शन दीजै। मैनू भी मिला दे जिन्हों तू मिली हुई है। कहो सतनाम श्री। हे जीव इस्त्री, हे मेरे मित्रा, मेरे सज्जना, मेरे यार, तू मालक नूं मिलिया, मैनू भी मिला दे। जिवें नामदेव नूं तलोचन कहना यार तू दर्शन करदा रोज़, मैनू भी कदे करा दे। तो फिर नामदेव ने गल मान के दर्शन तो करवाते, पर तलोचन नूं पछाण नहीं आई कि जिहड़ा मेरे घरे 2-3 महीने लोकां दे प्रशादे बना के घर दे सेवा करके गायब हो गया, वो मालक घरे आया सी असल विच। को सतनाम। पछाण नहीं आई। पछाण भी किसे किसे नूं कराउंदा है। आखिरी पंक्तियां विच प्रीतम जी कहंदे पूरे भाग सतगुर मिले, ज्ञान विहूणी फिर मुतियां, पिरम न पाया जाए। अज्ञान मती अंधेर है, बिन फिर देखे भुख न जाए। जे किसी परिवार का मुखी है जिहड़ा, बच्चियां दा पिता, इस्त्री दा पति, शामां नूं टाइम नाल घरे ना पहुंचे ते की उन्हां नूं रोटी चंगी लगदी आ। को सतनाम श्री। इसे तरह ही अज्ञानता विच फसियां होइयां ये जीव इस्त्रियां, भाव आपां सारे अज्ञानत मत्ती अंधेर है, अज्ञानता विच ही भटक रहे हैं। बिन फिर देखे भुख न जाए, जिन्ना चिर मालक मिलता नहीं साडी आशा तृष्णा की भुख खत्म नहीं हुंदी। भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार। देखदे आ मंत्री संतरी राजे महाराजे किन्नी किन्नी माया जोड़ के घरे बैठे आ, पर हजे भी भुखे आ, हजे भी कहते आ थोड़ी आ। बाबे ने पहले कहता भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार। चारा पुरियां दा समान भी किसे एक बंदे नूं दे दिओ, कहूगा हजे थोड़ा है, तो फिर गाहां मौत ही हुंदी है। काल ही हुंदा, जहां लोभ तै काल है उत्थे मौत है। मेरे प्रीतम जी कहते अज्ञान मती अंधेर है, बिन फिर देखे भुख न जाए। आवो मिलो सहेलियो, मैं फिर देहो मिलाए। आओ सतसंगियां नूं कहिए यार सानू भी मिला दिओ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀਆਂ? 5 ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ। इस जग में पुरख एक है, होर सगली नार समाई। बाकी नर मादा दे जोड़े बनाए आ दुनिया भरी रखण वास्ते। मेरे प्रीतम जी कहते आवो मिलो सहेलियो मैं फिर देहो मिलाए। जद पुछया वो कहते वड्डे भागां नाल मिल सकते आ, तू गुरु कोले जा। किसी गुरमुखां ने गल कीती यार मैनू भी आह आनंद आ सकदा, तो गुरमुख कहते गुरु कोले जा। मैं भी 5 प्यारियां कोल गया सी, गुरु ग्रंथ साहब कोल गया सी, तू भी उहदे कोले जा। पूरे भाग सतगुर मिले फिर पाया सच समाए। से सहिया सुहागनी जिनको नदर करे, जिन्हां ते गुरु की कृपा दृष्टि हो जाती है। सावन सरसी कामनी, वो जीव इस्त्रियां सावन के महीने भी सुखी वसदियां। चरण कमल सो प्यार, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਤਪਦੀਆਂ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਮੰਗੂ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਸੇ ਸਹੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਖਸਮ ਪਛਾਣੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਆਗਿਆ ਦੇ। अपनी मत गुरु के अगे रख देवे ते गुरु की मत नूं ग्रहण कर लवे। तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्निया पाई है। जिमें गुरु अंगद देव जी ने सौंपे आ। गुर शब्द समावै अवर ना जाने कोई जियो, अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम ध्यावे। जिमें प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पद भी पावे। जिमें गुरु अंगद देव जी ने अपना जीवन बदलिया, इदा सिखा तू भी बदल लै। मेरे प्रीतम जी कहते खसम पछाणे अपना तन मन आग्या दे, घर वर पाया अपना हौमै दूर करे। हंकार छड्ड के ही वर पति ते पति का घर भी मिल जाना। जब पति मिल गया घर भी नाल ही आ जाना। को सतनाम सी। पति परमेश्वर है, जब परमेश्वर मिल गया तो सचखंड भी नाल ही मिल जाना है। पातशाह जी कल के बचनों में कह रहे सी, बख्शिश करते हुए कि वह रूहां जिहड़ियां हन अपने मालक दे विच समा करके उहदे घर भी सुखी वसदियां हन। लहे महल निज कर वसै अमृत पीवै तां सुख लहे महल। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਰ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਵਰ ਤੇ ਘਰ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, हे ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕਾਮ ਗਹੇਲੀਏ, ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਬਾਹਾਂ ਲੁੜਾਏ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ आ गुरु नूं पुछिए। घर वार पाया अपना हौमै दूर करे। हंकार छड्ड के गुरु कोले आइए, जिवें भाई मंझ ने छड्डिया। नानक सोवा बंतियां सुहागणी अनदिन भगत करे। वो जीव इस्त्रियां वो सुहागना सोभा बंतियां, उन्हां दी इत्थे भी वडियाई हुंदी आ। असीं करदे आ भगतां दी वडियाई, गुरुआं दी वडियाई, गुरमुखां दी वडियाई, भाई बिधि चंद वर्गियां दी वडियाई करते हैं। किसी वेले उस बिधि चंद नूं दुनिया चोर कहती सी, पर जदों वही बिधि चंद 5वें पातशाह का सिख बन गया, अज साडा वो सत्कारयोग हो गया। को सतनाम श्री। क्योंकि उन्हें अपना जीवन बदल लिया, कन्वर्ट कर लिया। आपां भी बदल गए। खसम पछाणे अपना तन मन आग्या दे, घर वर पाया अपना हौमै दूर करे। नानक सोभावंतियां सुहागणी अनदिन भगत करे। ਜਿਹੜੀਆਂ मालक की भगती करदियां, मालक के हुक्म अंदर चलदियां, अनदिन बिना दिन गिणिया रोजाना मालक के हुक्म नूं मनदियां, वो सोभावंतियां हुंदियां। सुहागवंतियां जिन्हां कोले सुहाग है, सोभावंतियां जिन्हां दी वडियाई हुंदी है। लोक सुखी परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले दे महावाक अनुसार। इसी अज के शब्द के विचार, अगले शब्द के विचार कल के दीवाना में सरवण करांगे। बोलदे अनेकां अखर बाद घाट हो जाते। सिख संगतां ते सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लेना जी।
समाप्ति करिए। बुलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु।